ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମା ଭାଗ 16। ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 33। ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ନବାବ ବାଦଲ ସିଂ ବାଗ୍ଦି ତଣ୍ଡା। ରାତ୍ରି ପ୍ରହରକେ ଅତୀତ ପ୍ରାୟ। ନବାବ ସାହେବଙ୍କ ମହଲସ୍ଥ ଏକ ନିଭୃତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସି ଅତି ସଂଗୋପନରେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କୃପାଣହସ୍ତ ପ୍ରହରୀ ସାବଧାନତା ସହିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଦେଖ ହାବିଲଦାର ବାଦଲ ସିଂ, ଆମ୍ଭ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିଧନ ସାଧନ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭର ଯାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା। ସନ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାଁ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ବାଦଲ ସିଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହଜୁର ଜାହାଁପନା, ମୋ ଗୁସ୍ତାଖି ମାଫ କରେ। ତେବେ ମୋ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ହଜୁର ହୁକୁମ କରୁଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ହଜୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୈରୀ ସାଧନ। ହଜୁର ହଜାର ଉପାୟରେ ଦୁଶ୍ମନର ମେହରବାନୀ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ଏହି କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ କରିଯାଏ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ସୁବାଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଉଦାସୀନ। ଜଗତ ଜାଣନ୍ତୁ, ନବାବ ସାହେବ ହୀନବଳ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଶକ୍ତି କିଛିମାତ୍ର ନାହିଁ। ଦୁଶ୍ମନଠାରୁ କୃପା କ୍ରୟ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି। କଲିକତାର ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନବାବଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନେବା କିମ୍ବା କିଞ୍ଚିତ୍ ବଳ ବିକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରି ନବାବୀ ତଖ୍ତ ହସ୍ତଗତ କରିବା ଶକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହ ଜାଣନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହସ୍ତରେ ନବାବୀ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନାହିଁ। ନବାବ ସାହେବ କହିଲେ, ବାଦଲ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହ। ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ସକାଶେ ସହାୟ ହେବୁ। ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଚାଲିଯାଇ ଏକାକୀ କ'ଣ କରିବ? ବାଦଲ ସିଂ, ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଏକଲିଙ୍ଗ ମୋହର ସହାୟ। ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେବେ ସାଧୁ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେବେ। ସାଧୁ ସଂକଳ୍ପରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନବର ଭରସା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସକାଶେ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି, ପିତୃଘାତୀକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବଦ୍ଧ କରିବି, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ସତ୍ୟବାଦୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରୁ ବିଚଳିତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଅନ୍ୟଥାଚରଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଥବା ରାଜପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁରୂପା। ଏଥକୁ ରାଜପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବହୁରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ମୋ କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଅନ୍ନଦାସ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିକ୍ଷଣି ମୋ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାଦଲ ସିଂ ମୁଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ନବାବ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ନବାବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାଦଲ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ନିର୍ମମ। ନବାବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାଦଲ ଧନାଭିଳାଷୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଚାକିରି କରିନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିପାଇଁ ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବ? ନବାବଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହେଲା, ବାଦଲ ସିଂ ପିଲା, ଆମ୍ଭ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲୋକ। ତା'ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବିମୁଖ ହେଲୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା। ନବାବ ଆହୁରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳିଲେ, ବାଦଲ ସିଂ ହିନ୍ଦୁ କାଫିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଅଟଳ। ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ଚାଚା ବାଚା ବିତଳିତ ହେଲି। ଛି! ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନବାବ କହିଲେ, ବାଦଲ, ତୁମେ ପିଲା ଲୋକ, କଥା ନ ବୁଝି ଆମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଉଅଛ। ଦେଖ, ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଗୀ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିଅଛି। ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। ଦେଖ, ଆମ୍ଭର କମାଣ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ନାହିଁ। ଗନ୍ତାଘର ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି କାଳିବାସୀ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ, କାହାକୁ ଘେନି କ'ଣ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ଆହୁରି ଦେଖ, ଦିବାନିଶି ଚିନ୍ତା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାହାର ଅନିଦ୍ରାରେ ଦେହ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ବାଦଲ,
आम शरीर देख, आम्भे कि सहजरे संधि करबाकू स्वीकृत होइअछु। युद्ध क्षेत्र रे अवस्था तुमको बोलिबाकू हेब नाही। ସେହି संकट समय रे तुम्भे सहाय होई नथिले आज कौन होइथांता। प्रकृत कथा बादल, तुम प्रतिज्ञा शुणी आम्बे केड़े दिल बांधिथिलु कौन करिबु नाचार। बादल सिंह किंचित अप्रतिभ विनीत होई कहला, जहाँपना हजूर, दुश्मन विनाशर कि अन्य किछि उपाय नहीं। ए उत्तारे नवाब बादल सिंह दुई जण अनेक रात्रि पर्यंत अति संगोपन बसी मंत्रणा कले। एते सावधान एते अनुच्च स्वर रे कथोपकथन हेले जे अन्य प्राणीर अगोचर। अवशेष नवाब कहले, पारिब तो? बादल सिंह, निश्चय निश्चय निश्चय। जहाँपना मो धर्म अधर्म जाने नहीं, न्याय अन्याय जाने नहीं, एतिकी जाने पितृघाती मोहर बद्ध। स्वहस्तरे पितृहंता को बद्ध करिबी, ଏହା ହିଁ मोहर प्रतिज्ञा। पितृवैर साधन को महापुण्य कर विषय ज्ञान करे। जेन तेन प्रकारण शत्रु निपात साधन धर्मशास्त्रर विधान। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण कौशल रे जरासंध को विनाश करथिले। नवाब, सेनापति मुस्ताफा एथिरे सम्मत हेबे कि नहीं मोर संदेह अछि। बादल, आपणक काबुली किसमिसवाला सेनापति को भल करी चिन्हिलेणी। भुकिला कुकुरा मुहरे मांस खंडे गुंजिदेली तुनी। परिच्छेद 34। परिच्छेदर नाम संधि प्रस्ताव चतुरे चातुरी। काटयाठारे भास्कर पंडितଙ୍କ तंबू मध्यरे नवाब प्रेरित देवान जानकीराम, पंचप्रहरी, मनसबदार सरदार खां एवं स्वयं भास्कर पंडित तीन जण बसी संधि संबंधरे कथोपकथन करुअछन्ति। अनेक तर्क वितर्क, अनेक वादानुवाद, अनेक कथन पथन उत्तारे जानकीराम कहिले, देखिबा हेउ पंडित जी, मु हिंदू हिंदूर मंगल कामना करवा स्वाभाविक, अपरंतु मु नवाब साहेब को बर्तनग्राही भृत्य। एथकु तांकर स्वार्थ प्रति दृष्टि रखी कार्य करिबा मध्य मो पक्षरे अवश्य कर्तव्य। वर्तमान मु उभय पक्षर मंगल साधन कार्य प्रति दृष्टि रखी बोलुअछि। मिलन सर्वंसरे श्रेयस्पद अटे। विचार करी देखंतु, एथि विषय बरंच आपणक पक्षरे अधिकतर कष्ट लाभर संभावना। सुलभ निश्चित लाभ त्यागपूर्वक संकट संकुल अनिश्चित लाभ प्रत्याशा करिबा ज्ञान संपन्न लोक पक्षरे कदाच अनुमोदनीय नुहे। नवाब साहेबଙ୍କ पक्षरु संधि प्रस्तावर उद्देश्य आपणଙ୍କ परि ज्ञानी लोकठारे सटीक व्याख्या करबा निष्प्रयोजन। वर्षतय व्यापी युद्धरे उभय पक्षर कलबल उभय पक्षठारु अविदित नाही। ए क्षेत्र रे आपण सहजरे अनुभव करिपारंती कि सकाशे संधि वांछनीय। आउ जय पराजय केवल बलाबल प्रति निर्भर करे नाही। विजयलक्ष्मी संपूर्ण दैवाधीना। अपरंतु वर्तमान देशर जे प्रकारर अवस्था, जय पराजय उभय तुल्य ज्ञान करबाकू हेब। बंगदेश मानवशून्य होई पड़िलाणी। आउ किछि दिन युद्ध चलिले वन्य जंतुर बासोपयोगी होई पड़िब। विजित विजन राज्य हस्तगत हेबा विडंबना मात्र। आपणଙ୍କ परि नवाब साहेब मध्य प्रथमरे संधिर पक्षपाती नथिले। आम्भेमाने प्रकृत घटना बुझाई देबारु समस्त विषय तांकर हृदयंगम हेला। धारश्रावण उपयुक्त स्थानाभाव हेतु वर्गी पाइकमाने व्याकुल होई पड़िलेଣି। वर्गी जीवन स्वरूप अश्वगुड़िक कादुअरे छिड़ा होई होई सेमानଙ୍କ गोड़रे रसबात फुटी पड़िलाଣି। भागीरथी एवं अजय नदी वर्धित होई विग्रह विषय विशेष विघ्न उपस्थित कराइअछि। बालेश्वर बंदर ठाकु बाहुरी जिबे कि नवाबଙ୍କ ठारे संधि प्रस्ताव करिबे। एही विषय घेनी भास्कर पंडित अधीनस्थ सेनापतिଙ୍କ सहित परामर्शरे नियुक्त थिले। इत अवसरे नवाब पक्षरु संधिर प्रस्ताव उपस्थित हेबारु अत्यंत आनंदित हेले। मन मध्यरे चिंता कले भाग्य सुस्पर्शन्न हेले ईदृश सुजोग उपस्थित हुए। आम्भमानଙ୍କ पक्षरे एपरि केते दुःखजनक बा सुखकर विषय कदाचित उपस्थित हुए, जहाकु आम्भेमाने विपरीत भावरे ग्रहण करू।
अर्थात दुःखकर विषय सुखजनक एवं सुखजनक विषय कष्टकर बोली आम्भमानଙ୍କର प्रत्यय हुए। भविष्यतर निबिड़ा अंधारकर मध्यरे निहित विषय दर्शनरे मानव चिरान्ध। भास्कर पंडित आपणार अभिप्राय गोपन रखी एवं संधि विषय ईषत् असम्मति सूचक भाव प्रकाश करी कहिले, अवश्य अवश्य विग्रह काहारी वांछनीय नुहे, तेबे आपणार प्राप्यांश सहजरे केही परित्याग करने सम्मत हुए नहीं। आपण माने विज्ञ बहुदर्शी राजनीतिज्ञ उभय पक्षर मंगल कामना करी स्वेच्छा प्रेरित होई संधि प्रस्ताव करुअछंती। आशा करू सर्वराग्रे एही विषय मीमांसा करने यत्नशील हेबे। जानकीराम, अवश्य आपणଙ୍କ प्रस्ताव असंगत नुहे, एहा तो संधिर प्रधान अंग। मात्र प्रणय मिलन स्थल रे उभय पक्ष को किछि किछि क्षति स्वीकार करने हुए। भास्कर पंडित, मात्र नार्य प्राप्य परित्याग करने काहारी पक्षरे सुविधाजनक नुहे। बेरार पतिଙ୍କ प्राप्य टंकाटा नवाब साहेब देवाकू स्वीकृत हेले एही खणी संधि विषय सम्मत हेबु। जानकीराम, आपण कि रूप शर्तरे संधि करने सम्मत? भास्कर पंडित, आपण जे स्थल रे स्पष्ट रूपे प्रश्न करुअछंती, इतस्ततः न करी स्पष्ट रूपे सेथिर उत्तर देबा आवश्यक। बालेश्वर, बांकुड़ा, वर्धमान, हुगुली ए समस्त महाराष्ट्रपति विजित प्रदेश। एथि संबंध में कौनसी कथा बोलिबार नहीं। बंगलार अन्यान्य प्रदेश एवं बेरार प्रदेश पाई चौथ स्वरूप 2 कोटी टंका नवाब साहेब देवाकू स्वीकृत हेले। संधि सकाशे सिंधिया को अनुरोध करि पारु। जानकी राम, आपणक दाबी असंगत नुहे, तेबे ए विषय मीमांसार भार आपणक प्रति निर्भर करे। विचार करंतु, हुगुली कौनसी दिन महाराष्ट्र विजित स्थान नुहे। अधिकंतु 2 राजशक्ति एड़े अदूरवर्ती स्थान रे अवस्थान कले नाना समय रे नाना कारण रे मनमालिन्य संगठित हेबार संपूर्ण संभावना। आउ बिहार चौथ सकाशे हुलुकरा बालोजीराव 1 करोड़ टंका ग्रहण करिअछंती। भास्कर पंडित, नवाब साहेब मनसृष्टि सकाशे आमे हुगुलीर दाबी त्याग करिपारो। आउ हुलुकार बालाजी रावकर नार्य दाबी किछि मात्र नथिला, से अकारण रे एते टंका ग्रहण करिअछंती। जानकीराम, संधि संस्थापन समय रे संगत असंगत विषय समालोचना करा जाय नहीं। केवल मैत्री रक्षा निमंते हुलुकरଙ୍କ दाबी टंका प्रदत्त होइअछि। भास्कर पंडित, अवश्य आपण माने विज्ञ शांतिप्रिय, आपण मानक यत्न और परिश्रम द्वारा हुलुकरा और नवाब मध्य जे संधि स्थापित होइअछि सेथिरे संशय नहीं। आशा करो प्रस्तावित संधि विषय आपण माने बेरारपतिଙ୍କ सकाशे किंचित परिश्रम स्वीकार करिवे। संधि संबंधरे आम्भे संपूर्ण सम्मत अछु बोली जानिबे। जानकीराम, निश्चय आम्भे माने प्राणप्रणे चेष्टा यत्न करिबो। आम्भ मानकर ध्रुव विश्वास नवाब साहेब एवं आपणଙ୍କ मध्यरे भेट हबा मात्र के समस्त विषय निष्पत्ति होइजिबो। हुलुकरଙ୍କ सहित संधि समय रे दीर्घकाल व्यापी तर्क वितर्क रे किछि मीमांसा होई पारि नथिला। मात्र परस्पर साक्षात मात्र के समस्त विषय स्थिरीकृत होई गला। आम्भମାନଙ୍କ कथार यथार्थ पश्चात अनुभव करिवे। भास्कर पंडितଙ୍କୁ उपहार देवा निमंते जानकीराम एवं सरदार खां नवाबଙ୍କ चंगड़ा घरु मणिमाणिक्य जड़ित अनेक प्रकार स्वर्ण अलंकार एवं विविध प्रकार बहुमूल्य द्रव्य आनिदेले। से समस्त देखि भास्कर पंडित आनंद मनरे चिंता कले यह संपत्ति लाभर सूचना मात्र। अतः पर समस्त कार्य विश्वस्तता सहित कराजिब। एथे सकाशे जानकीराम भास्कर पंडित 2 जन गंगा जल एवं सरदार खान कुरान शरीफ स्पर्श कले। सिद्धांत हेला नवाब एवं भास्कर पंडित उभयଙ୍କ साक्षातर शर्त साब्यस्त एवं संधिपत्र स्वाक्षरित हेब। उभय पक्ष मर्यादा रक्षा सकाशे केही काहारी अधिकारभुक्त स्थान को जिबे नाही। मुर्शिदाबाद एवं काटेया मध्यवर्ती मानकर नामक स्थान रे नवाबଙ୍କ डेरार उभय पक्षर मिलन हेब। डेरा ठारू 2 क्रोश दूरवर्ती स्थान मध्य कौनसी पक्षर कौनसी प्रकार पाइक उपस्थित रहिबे नाही।
केवल पदगौरव रक्षा अनुरोधରେ उभय पक्षରୁ 1 सप्ताह मात्र पाइक उपस्थित रहिबे। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार प्रातः काଳରେ साक्षातर समय निरूपित ହେଲା। उभय पक्ष परस्पर सहित आनंद प्रेमालापरे मेलाणी हेले। आम्भेमाने विशेष अनुसंधान द्वारा अवगत होइअछु उभय पक्ष जे आनंदित होइथिले सेथिरे संदेह मात्र नाही। नवाब पक्ष आनंदित, बिलुआ तो फांदरे गोड़ देउछि। भास्कर पंडित आनंदित, पठाण घर टंकाटा तो आगे बाहरी आसु पछे बुझासुछा। हुलुकर तुच्छाटरे 1 करोड़ टंका बांधी घेनिगला, देखा जाऊ पठाण कौन कहे। निकुछरे क्रोରରେ टंकारु तो उणा नुहे। भगवान वासुदेव मध्यम पांडव अर्जुन को बोलिथिले, एकमात्र लोभरू समस्त प्रकार विपद जात हुए। लोभ विनाशर द्वार। चतुरतारे केही काहाको उणा नुहंती। आम्भेमाने एहा मध्य अवगत होइअछु भास्कर पंडित एवं जानकीराम 2 जण जो गंगा जल स्पर्श करिथिले ताहा प्रकृत गंगोदक नुहे। उभय पक्ष भृत द्वारा कौशल आनीत कुपोदक अटे। आ पाटकनारे भिड़ा गोलेस्तान किताब को कोरान शरीफ बोली सरदार खा स्पर्श करथिले। आपणा आपणा बुद्धि को प्रशंसा करी उभय पक्ष निश्चिंत। तेबे एहिठारे शेष होला औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापतिंकर उपन्यास लच्छमार एही परिच्छेदटी। आगामी अध्याୟରେ एही उपन्यासटीर अन्य परिच्छेद को आमे सुनिबा। रहिली, नमस्कार।